Hi, thank you, Riddhi, and very good afternoon to all of you present here. Namaskar. Uh, I think we are meeting after a long time. मुझे नहीं लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी कभी मुलाकात यहाँ पे हुई है. तो for the media persons in Lucknow and Uttar Pradesh and Uttarakhand, I think this will be the first interaction. In the last couple of years, we have been in news, industry has been in news for various things. But at Vodafone Idea Limited, पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, lots of ups and downs. But I can, with a certain degree of confidence, tell you that the worst is behind us. And Vodafone Idea is absolutely committed to the telecom industry, and we are here to stay, and we are back in the game. What I'll try and do is अगले 20-25 मिनटों में मैं कुछ slides दिखा करके आपको I'll just try and give you a little bit of a structure. और उसके बाद if there are any questions that you might have, we can get into that. Our last big thing that has happened, जो हमारा FPO हुआ, follow up public offering, उसमें हमने 18,000 करोड़ रुपए का फंडिंग किया है इक्विटी के थ्रू, which is what is one part of the funding that overall scheme of things that we are looking at. As we have said before, we are looking at 50 to 55,000 crores of the kitty, which is getting invested over the next 3 years. The balance amount is being taken through a loan for which the work is on right now. If I were to just give you a little glimpse of how and what is the shareholder pattern and how are we structured. I think the important thing to note is obviously there are two large business houses which are the parent company, Aditya Birla Group and Vodafone. Aditya Birla Group recently has been a $100 billion market capitalization, which we have announced. It's obviously a diversified group, right from a retail to a textile to a cement to now the new business is paints, and obviously telecom is another big arm of it. The other one is Vodafone, which is again a very known name in the European market as well as in the African market. And the other important part is that if you really look at how we were structured, तो हमारे यहाँ पहले वोडाफोन और आइडिया दो कंपनियाँ थी जिसका मर्जर हुआ. जो लास्ट रिफॉर्म पैकेज है उसमें इफ यू सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ स्टेक ऑफ 23.8%. सो एक्चुअली दिस स्टेक वाज 32%. एफपीओ के बाद जो है वो परसेंटेज कम है. आज के दिन में अगर मैं प्रमोटर्स का शेयर देखूं तो 38% है. इट मीन्स वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप का मिला करके 38% है. 23% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, और बाकी जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो करीबन 38% के करीब है. ये 38% पहले 19% था इस एफपीओ के पहले. सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू हमारी कंपनी में आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस. आई थिंक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जिस तरीके से हमारा एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है 7 times, दैट शोज दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इवन अ रिटेल इन्वेस्टर एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैज इन द ऑर्गेनाइजेशन. टेलीकॉम अब काफ़ी 30 साल पुरानी इंडस्ट्री है, सो एवरीबडी नोज व्हाट गोज इन टेलीकॉम. बट व्हाट दिस स्लाइड रियली टेल्स यू इज कि टेलीकॉम में बेसिक 3 या 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी ऑपरेटर को चलाने के लिए. सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास स्पेक्ट्रम कितनी है. दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास रेडियो या जिसको हम साइट कहते हैं या टावर कहते हैं वो कितनी है, जिसको कि आप स्पेक्ट्रम जिससे फायर करते हैं. तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको जो आपकी साइट है और जो आप स्पेक्ट्रम को यूज़ करेंगे उसको आप बैकबोन या फाइबर के थ्रू कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये स्लाइड आपको बेसिकली ये दर्शाती है कि इन तीनों चीज़ों में, वेदर इट इज़ स्पेक्ट्रम होल्डिंग,
whether it is the number of sites that we have or the infrastructure which is the fiber infrastructure में हमारी क्या positioning है across the country. And I think it's a very, very stable position that we have if you look at the industry overall in the Indian context. ये सारे हमारे कस्टमर हैं, तो हमारे करीबन 21 करोड़ कस्टमर हैं, 213 मिलियन कस्टमर्स हैं जो इंडिया में हैं, एंड वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 4,87,000 टाउन में, 6 लाख टाउन एंड विलेजेस हैं इंडिया में. The other important thing is that भारत की जो आबादी है 140 करोड़, उसमें से हम करीबन 120 करोड़ लोगों के तक पहुंचते हैं अपने 2G सर्विसेज के थ्रू, और करीबन 100 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं 4G सर्विसेज के थ्रू आज के दिन. एंड मैं आपसे आगे बात करूंगा कि जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है उसका क्या प्लान है. हमारी जो इन सब चीज़ों के लग के स्ट्रैटेजी क्या है, और 4 स्ट्रैटेजी है हमारी जिसकी हम बात करते हैं. पहली स्ट्रैटेजी तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी FPO है और 50-55 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा प्लान है अगले 3 साल में. तो जो सबसे ज़्यादा उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑब्वियसली नेटवर्क में होगा. और नेटवर्क में आज जहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि मैं 120 करोड़ 2G से कवर करता हूँ और 100 करोड़ लोगों को 4G से कवर करता हूँ, तो आज हमारी तकलीफ क्या है या हमारी हमें कहाँ एक्सपैंड करना है. पहली चीज़ तो ये करनी है, जैसे और मैं लखनऊ शहर के एग्जांपल लेता हूँ कि लखनऊ शहर में अलग अलग इलाकों में डेटा की जो यूटिलाइजेशन है, जो इंसान पहले 5 GB डेटा महीने का यूज़ करता था, अब वो डेटा 20 GB 25 GB तक चला गया है. तो उसके कारण कैपेसिटी जो है वो कम होती गई है. तो पहला तो हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगा जिसको कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं, कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. दूसरा है कि हम लखनऊ शहर भी बड़ा हो रहा है, तो हम उन जगहों पे जहाँ शहर बड़ा हो गया है, आर वी प्रेजेंट देयर और नॉट प्रेजेंट देयर, एंड वी शुड बी प्रेजेंट देयर. एंड द थर्ड रिंग जिसको हम कहते हैं वो हम कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि लखनऊ शहर में बहुत सारे अगल बगल के गांव हैं, शहर हैं छोटे, जिसको हम फीडर टाउन भी कहते हैं. सो लखनऊ में लोग आते हैं, काम करते हैं और फिर वापस अपने गाँव या शहर चले जाते हैं. तो उन एरियाज में हमारी कवरेज कैसे है, तो इन तीनों चीज़ों को हम कवर करेंगे. और लखनऊ इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसी तरीके से बाकी के शहर हैं वो करने वाले हैं. और जो उसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है वो 5G में जाने वाली है, जिसके बारे में मैं बात करूँगा. जो राइट साइड में मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी 2 साल 2.5 साल में कर चुके हैं. सो जब हम 5G का हमारे पास स्पेक्ट्रम है और मैं बात करूँगा उसके बारे में, लेकिन जो 5G का स्पेक्ट्रम है उसको हमने 5G की साइटें डिप्लॉय नहीं की है, लेकिन जो 5G की रेडीनेस होती है, हमारे कोर नेटवर्क में रेडीनेस चाहिए, हमारे को फाइबर पे रेडीनेस चाहिए, हमारा जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे रेडीनेस चाहिए. तो हम उन सब चीज़ों पे जो है वो पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी काम कर रहे थे बैकग्राउंड में, जिसके कारण हमारा जब हमें 5G लॉन्च करना होगा, जो हम आगे 6-8 महीने में लॉन्च करेंगे, उसके लिए हमारी जो रेडीनेस है वो बिल्कुल तैयार है. सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज, कि हम किस तरीके से अपने नेटवर्क को इनहांस करें और कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर करें. हमारी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है, आज के दिन में एक जो चैलेंज है मार्केट की, वो है कि हम आरपू को कैसे इनहांस करें, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाएं. तो हमारे पास अगर आप देखें तो करीबन 30 से 35% ग्राहक ऐसे हैं जो 2G यूज़ करते हैं और 70% ग्राहक ऐसे हैं जो 4G यूज़ करते हैं. किस तरीके से हम, और सारे लोगों को डेटा चाहिए, तो किस तरीके से हम अपने ग्राहकों को जो 2G यूज़ करते हैं उनको हाउ डू वी माइग्रेट देम टू अ 4G. या हमारे यहाँ जो आजकल प्रोपोजिशन अनलिमिटेड का चला रखा है, तो अनलिमिटेड में अनलिमिटेड वॉइस होता है और अनलिमिटेड डेटा होता है, तो हम अनलिमिटेड वॉइस के कस्टमर को अनलिमिटेड डेटा में कैसे ले जाएं. दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस स्ट्रेटजी के थ्रू, कि हाउ डू आई इंक्रीज द आरपू, कि किस तरीके से हम एंगेजमेंट बढ़ाएं. तो मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सिर्फ, और आप सारे लोग यूज़ करते हैं, वॉइस और डेटा इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग टुडे. आज से 5 साल 10 साल पहले डेटा वॉज अ वेरी डिफरेंट कमोडिटी, बट टुडे एवरीबडी यूजेस वॉइस एंड डेटा. सो हाउ डू आई गिव यू मोर. तो अगर आप देखें तो हमारी जो OTT की ऑफरिंग है, हमारी जो नेटफ्लिक्स की ऑफरिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कस्टमर को बांधता है हमारे साथ, स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है और हमारे को आरपू इनहांस करता है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ, जो हम अगर आप यहाँ पे देखें इस वाले में,
बकेट में जहाँ पे वी मूवीज और टीवी लिखा है, हमने अभी ये कनेक्टेड टीवी लॉन्च किया है करीबन डेढ़ महीने पहले। इसमें हम अब हर आदमी आज के दिन में कोई सोनी लिव देख रहा है, कोई डिज्नी हॉटस्टार देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है। आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसका, अलग अलग सब्सक्रिप्शन के डेट्स अलग होते हैं जब उसको आपको रिचार्ज कराना होता है। वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि आप एक के 199 देंगे, दूसरे का 150 देते हैं, तीसरे का 199 देते हैं। तो हमने एक पैकेज अभी बनाई है, 199 रुपए की पैकेज है ये, जिसमें कि 13 OTT और 400 चैनल उस एक पैकेज में इंक्लूडेड है। इससे क्या मिलता है? एक तो पहला मिलता है वैल्यू फॉर मनी, कि आपको जो चीज इस पैकेज को अगर आप इंडिविजुअली खरीदने जाएंगे तो करीबन 600 साढ़े 700 रुपए का पड़ेगा। तो एक तो वो वैल्यू फॉर मनी मिला। दूसरा मिलता है कन्वीनियंस, कि आपने एक जगह पे रिचार्ज कर लिया, एक जगह के ऐप पे ऑन किया और आपने उसको यूज किया। और जो तीसरी चीज मिलती है वो मिलती है कि इसका जो सीमलेस मूव करता है मोबाइल से आपके टीवी पे। एक दफा आपको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आप उसको मोबाइल पे देख रहे हैं, जब आप घर पहुंचे या दफ्तर में पहुंचे टीवी पे देखना चाहते हैं तो यू कैन सीमलेसली ट्रांसफर दैट। So these are some of the initiatives which actually binds the customer together, and this is what we are trying to do to engage our customers. बाकी सारी चीज़ें भी हैं हमारे, जैसे हमारे यहाँ करीबन यहाँ पे 700 दुकानें हैं। मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करूँ तो, लेकिन अगर आप भी प्रायोरिटी के देखें तो हम आज के दिन में हमारे जितने भी पोस्टपेड कस्टमर हैं, हमने उनको अलग अलग सेगमेंट में बांट रखा है। तो उनके लिए एक डेडिकेटेड डेस्क है हमारे वी स्टोर्स में, जहाँ पे कि उनको प्रायोरिटी की सर्विस दी जाती है, उनको क्यू में वेट करने की दरकार नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तीसरी चीज़ और जो हमारी स्ट्रैटेजी की है, कि जो आजकल हर आदमी बात करता है कि डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाएं, और डिजिटल जो इकोसिस्टम है उसको मोनेटाइज कैसे करें, उसको हम उसका कैसे जो है सो मोनेटाइजेशन करें। इसमें 3 चीज़ें बहुत क्लियर आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, और आजकल जो कस्टमर की डिमांड है वो बिल्कुल चेंज कर रही है। यूथ जो है आजकल के, वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने हमारे पास गेमिंग की सर्विसेज पहले भी थी, वी गेम्स के नाम से। अभी हमने जो गेम केयर करके एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, जिसको क्लाउड गेमिंग कहते हैं। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे हैंडसेट जो होते हैं उसकी कैपेसिटी और मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो अब जब गेम डाउनलोड करके खेलते हैं तो आपके हैंडसेट की कैपेसिटी वो कंज्यूम कर लेती है। तो अभी हमने जो क्लाउड गेमिंग किया है, इसमें आप एक्चुअली ऑनलाइन रह के ही गेम खेल सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग हैंडसेट जिनके पास है वो लोग भी इसको खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 256 MB का रैम चाहिए तभी आप खेल पाएंगे। तो अलग अलग तरीके के जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे, वो लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमारी डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है ये B2B सर्विसेज है। हमारे पास करीबन, जैसे आपको मैंने बताया, 21 करोड़ ग्राहक हैं। जो लोग अपने एक, फर्स्ट कर लीजिए एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज बेचनी है, तो वो हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के और अपना ऐड डाल सकते हैं, जो हमारे 21 करोड़ लोग देखते हैं। और इसको हम AIML जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसके थ्रू जो है वो करते हैं, इनहैंस करते हैं कि इसको किस आदमी को दिखाना है। अगर वो उसको डेमोग्राफी से हम डिवाइड करते हैं कि भाई ये किस एरिया के लोगों को क्या ऐड दिखाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसको बहुत रिसर्च करके बनाना पड़ता है। तो हम पिछले 3-4 सालों में इन सब चीज़ों पे बहुत हमारा ध्यान रहा है, सो दैट कि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें, स्टिकीनेस बढ़ा सकें और कस्टमर को बेहतर अनुभव दे सकें। तो ये 3 चीज़ों पे मैंने बात की। चौथी हमारी पिलर है जो हमारी एंटरप्राइज है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है वो एंटरप्राइज में भी बहुत बड़ी हमारी एक स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है। और एंटरप्राइज में जब कहता हूँ तो मैं सिर्फ मोबिलिटी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल फोन्स की बात नहीं करता हूँ। मैं उसमें फिक्स लाइन की भी बात कर रहा हूँ, मैं उसमें क्लाउड की भी बात करता हूँ, उसमें मैं IoT की भी बात करता हूँ। IoT एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मशीन टू मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन भी कहते हैं, M2M सिम कार्ड। जैसे आज के दिन में हमारे पास करीबन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम है कि 25 करोड़ जितने भी इलेक्ट्रिक मीटर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे को डिजिटाइज होने चाहिए, वो सिम कार्ड पे चलने चाहिए, जिससे कि आप मीटर रीडिंग के लिए जैसे लोग आते थे पहले वो नहीं हो और वो ऑटोमेटेड हो जाए। EESL करके कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में भी काम करती है।
हमारे पास करीबन जो है वो ESL बहुत बड़ा कस्टमर है वोडाफोन आइडिया के लिए, और हमारे लाखों सिम कार्ड जो हैं वो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में भी चलते हैं, हरियाणा में भी चलते हैं, अलग अलग जगहों पे चलते हैं। तो ये एक यूटिलिटी। दूसरी है कनेक्टेड कार है। आजकल सारी गाड़ियाँ जो हैं वो कनेक्टेड कार के थ्रू आ रही हैं। वी आर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज अ लीडर इन द कनेक्टेड कार सेगमेंट इन इंडिया। जितनी भी कनेक्टेड गाड़ियाँ आप देखते हैं इसमें एक सिम कार्ड लगी होती है जो फैक्ट्री फिटेड आती है, वो जो सिम कार्ड्स होती है वो हम सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस हैं। अभी ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, बट आगे चल करके इसका जो यूसेज है वो इंश्योरेंस क्लेम करना और इन सब चीज़ों पे भी होगा कि ड्राइवर गाड़ी कैसे चला रहा था, उसकी स्पीड क्या थी और किस तरीके से उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बनता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस थिंग। क्लाउड इज अनदर बिग play that we are getting into, whether it is a private cloud, public cloud या hybrid। और आजकल जितने भी SMEs भी हैं या बड़े बड़े corporates हैं, आप सारे मीडिया हाउसेस हैं, ये क्लाउड जो है वो हर आदमी को स्टोरेज के लिए चाहिए। Now, so this was more of a national picture. This is very quickly couple of slides on उत्तर प्रदेश and उत्तराखंड। दोनों को मिला करके देखते हैं क्योंकि हम उस तरीके से बिजनेस को मैनेज करते हैं। करीबन हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला करके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जा चुकी है करीबन 32,000 करोड़ की जा चुकी है, और 3,000 करोड़ हमने थ्रू स्पेक्ट्रम, थ्रू रेडियो, थ्रू फाइबर इन द लास्ट 3 years इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दीज टू मार्केट, एंड वी कवर 94% जो हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, हम उसको कवर करते हैं आज के दिन में अपने नेटवर्क के द्वारा। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन बिजनेस है वो नेटवर्क प्रोवाइड करना है और यूसेज प्रोवाइड करना है। और मैंने बताया आपको कि स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जिसके पास जितना स्पेक्ट्रम होगा उतना ही स्पेक्ट्रम फायर कर सकता है, वही कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस बनता है। तो हमारे पास अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, इस साइड में, तो ये सारे बैंड हैं 900, 1800, 2100, 2500, और हमारे पास 110 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है जो कि बहुत सफिशिएंट है हमें किसी भी तरीके की 2G, 3G, 4G, 3G तो मोटा मोटे तौर पे नहीं रही, 4G और 2G का सर्विस है, 2G वॉइस पे चलता है, 4G डेटा पे चलता है। हमारे पास एडिक्वेट स्पेक्ट्रम है जिसको कि हम फायर कर सकते हैं। 22,000 साइटें अभी हैं, हम और भी साइटें लगाएंगे। और हमारे पास 5G की भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 700 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम है। सो जहाँ तक स्पेक्ट्रम की बात है, जिस चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी है वो हमारे पास एडिक्वेट मात्रा में उपलब्ध है। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज के दिन में है। जैसे मैं कह रहा था आपको कि आप अगर वी स्टोर, मिनी स्टोर, हमारे अलग अलग सेगमेंटेशन है। 700 हमारे एक्सक्लूसिव दुकान हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, जहाँ से कि हम हमारे ग्राहक जो हैं वो आकर के सर्विस ले सकते हैं।